Hello everyone and welcome back to College Dunia Study Abroad. We are back with another interesting candidate. My name is Swapnil and आज जिनसे हम बात करने वाले हैं he is pursuing his MBA degree from the University of Bath. University of Bath has been ranked at 148 in the latest QS World Ranking reports. The average age of an MBA student at University of Bath is 30 years with an average work experience of 6 years. We had a very interesting conversation with Chirag. Stay tuned till the end of the video to know everything in detail. Chirag has also received a scholarship from the University of Bath and is now placed and working with Nestle right after his program has ended. Stay tuned till the end of this video to know everything in detail about the University of Bath. And now let's move ahead in our conversation. But if you also have a study abroad dream, description pe jao, click on the first link, fill in your basic details, and our expert counselors will reach out to you very soon. We also have two very interesting offerings, the visa guarantee package and the offer letter guarantee package, so do not forget to check them out as well. Now, let's move ahead in our video. Hi Chirag, how are you doing today? Hi Swapnil, thank you so much. आपने इतना अच्छा introduction दिया and everything. I'm really good. Thank you so much for this interview. I hope काफी students को help मिले इससे. Yes. Chirag, start करने से पहले यार अपना एक छोटा सा intro दे दो हमारे users के लिए. Sure, definitely. So मेरा नाम चिराग गोयल है and मैं 27-year-old स्टूडेंट हूँ MBA के लिए जो UK में आया था. Initially I had done my BCom honors from the Delhi University only with an average passing score of around 60%. बट उसके बाद सिंस आई न्यू इट वाज नॉट इनफ तो मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंटरमीडिएट लेवल तक करी एंड फाइनल तक अपीयर हुआ. उसके बाद आई स्टार्टेड टू रियलाइज दैट प्रोबेबली आई वांट टू डू मोर बट इंडिया में मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था आई माइट नॉट बी एबल टू सस्टेन, थोड़ा सा कम लग रहा था. दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू डू एन MBA. बीच में मैंने थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप साइड भी देखा. 2 years के लिए आई रैन माई ओन बिजनेस एंड उसमें प्रॉफिट भी हुआ. सो दैट एक्चुअली हेल्ड इन माई MBA एप्लीकेशन बिकॉज आप जब MBA एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करते हो तो एवरीबडी कंसिडर्स अ वेरी होलिस्टिक प्रोफाइल ऑफ योर्स. वो सब कुछ देखते हैं कि आपने एजुकेशन में क्या किया, अदरवाइज वर्क एक्सपीरियंस में क्या किया. सो ऑल ऑफ दिस हेल्प एंड विद अ कंबाइंड 5 years of work experience I started applying for MBA in many countries but UK as my preference. Awesome. That's a very good introduction that you have given. And we know कि तुम्हारा 5 साल का एक्सपीरियंस है and I want to quickly ask when you said कि maybe मैं इंडिया में सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, प्रॉब्लम क्या लगी यहाँ पे? Of course we also have good colleges and universities for MBA degree, right? बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया. प्रॉब्लम काफी लोगों के लिए ऑफ कोर्स इट्स वेरी सब्जेक्टिव बट जो मेरे को दिख रहा था विद टॉकिंग टू माय कॉलीग्स एंड सीनियर्स एज वेल, इंडिया में आपको स्टार्ट करने के लिए एक लेवल थोड़ा सा नीचे रहना पड़ता है बिकॉज सीनियर लेवल्स के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है एंड आप जेन्युइनली सीधा AM लेवल या मैनेजर लेवल पे आप जंप नहीं कर सकते विद अ वेरी बेसिक एजुकेशन. साथ ही साथ आपको अगर MBA के अच्छे कॉलेजेस इंडिया में चाहिए तो आपको मालूम है आपको CAT देना पड़ेगा या फिर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के वो एंट्रेंसेस देने पड़ेंगे जिसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ता है. प्लस अगर जैसे आप GMAT वगैरह कंसिडर करते हो विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप एक ही बारी में अपने वर्ल्ड वाइड गेट्स खोल लेते हो, नॉट जस्ट इंडिया, which actually also works in some colleges like ISB in India as well. So start वैसे किया and genuinely थोड़ा सा international exposure भी चाहिए था. That's how I wanted to move बाहर थोड़ा सा. इंडिया में थोड़ा सा सेम होता ही जा रहा था काफी. Perfect. It's good that you're out in UK now. And now I wanted to ask कि ठीक है University of Bath से तो पढ़ लिया. I suppose your program is almost gonna end now. But while you were shortlisting the colleges, shortlisting the countries as well, कहाँ पे पढ़ सकते हैं? किन कॉलेजेस में तुमने अप्लाई करा, कहाँ पे यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन डाली थी एंड कहाँ से एक्सेप्ट्स आए, कहाँ से रिजेक्ट्स आए? Of course. So I started off by looking at Canada, UK and Australia because US थोड़ा सा साइंस स्पेसिफिक ज्यादा है, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है. तो एट द एंड मैं UK में पहुंचा बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट चीज निकली थी 2 साल का ग्रेजुएट वीजा जो आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया है. तो आपको कॉलेज के बाद 2 साल यहाँ विदाउट एनी जॉब यू कैन स्टिल लुक फॉर अ जॉब एंड ऑल्सो कीप वर्किंग. So I applied in the Manchester University, Bath University of course. I applied in the Oxford, but इन सब का थोड़ा सा टफ चला जाता है तो I started shifting थोड़ा सा नीचे like Durham, Birmingham, Bristol, Bath, and then of course parameters में आते हैं आपके QS rankings, top university guides and times की जो studies निकलती हैं. जस्ट ऐसे ही अपना कॉलेज कभी भी आपको नहीं चूज करना चाहिए किसी की बातें सुन के या करके. आप ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग्स देखें, आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स देखें जो नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल रहने वाली हैं बिकॉज जॉब्स आपको उसी हिसाब से मिलना स्टार्ट होंगे. राइट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट
पॉइंट रेस्ड बाय यू एंड ठीक है, तुमने इतने कॉलेजेस में अप्लाई करा, कहाँ से एक्सेप्ट आया, कहाँ से रिजेक्ट आया? सो मेरे को एक्सेप्ट आया था बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से, बाथ यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स विच आई चोज इन द एंड, एंड ब्रिस्टल से, प्लस मेरा मैनचेस्टर में चल रहा था, बट आई डोंट नो, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर का काफी फेमस है, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, सो आई हैड टू डिसाइड वेरी क्विकली बिकॉज उनका बहुत ज्यादा जा रहा था. इवेंचुअली आई चोज यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ बिकॉज वहां मेरे को स्कॉलरशिप का चांस मिला लेने का, एंड दे गेव इट टू मी वेरी अर्ली, सो आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन इन माई हैंड वेरी अर्ली. Very nice, very nice. So we'll come to your scholarship again later in this conversation. But now I want to ask, University of Bath से तुम्हारा accept आ गया. What was your first reaction उस time पे जैसे ही accept देखा? So ये it was a Monday night. I remember very vividly. रात को 9 बजे email आया, क्योंकि आई डोंट नो ऑटोमेटेड था या जैसे भी था, क्योंकि उनकी शाम हमसे बाद में होती है. तो 9 बजे ईमेल आया, एंड ऑफ कोर्स मैंने इस तरीके से छलांग लगाई कि ओलंपिक्स में चले जाऊं, एंड फर्स्ट पीपल टू नो वर माय पेरेंट्स, एंड ऑफ कोर्स दे स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज उनको हमारी फैमिली में इट हैज नॉट हैपेंड मच कि लोग बाहर जाके पढ़ें, परस्यू करें करियर. सो उन्होंने भी यही बोला कि एक स्टेप तूने आगे लिया है, दिस इज प्रॉब्ली गोना बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप्स इन द हायरार्की ऑफ आवर फैमिली. Of course. I guess study abroad is not just for a student. It's for the whole family and for the upcoming generations as well. Exactly. Right. What was the first accept जो तुम्हें मिला था in universities में, sir? I think the Birmingham was the first one. बाकी कुछ countries के भी आए थे, but I'm not considering them because मेरा target फिर UK ही shift हो गया था. Bath was also not very late in their response, and the important thing is कि the team was very quick with any doubts I had. तो मैं कुछ भी raise करता था तो वो फटाफट जवाब दे देते थे. तो उससे आपको पता चलने लग जाता है how the university works. Right. अच्छा, बाकी यूनिवर्सिटीज में जहाँ तुम्हें रिजेक्ट्स मिले, why do you think तुम्हारी प्रोफाइल को रिजेक्ट्स मिले? Because you have everything, you have work experience, you have decent grades as well. What do you think would have been the reason? दो reasons हैं जो majorly हमने आपस में even while discussing with other students as well we realized. एक तो MBA क्लास के अंदर diversity बहुत important होती है for these universities. तो अगर एक country से कुछ ज़्यादा ही applications आने लग जाते हैं तो they start filtering out people by the experience and the background they have. तो मुझे काफ़ी universities ने feedback दिया because of over influx of students, क्योंकि ये COVID के बाद just पहला batch था जिसमें बहुत सारे students ने साथ में दबा के apply किया था. तो a lot of that. Otherwise, I think मेरा GMAT score, which I will also want to share, कि मैंने GMAT भी दिया. Apparently, University of Bath doesn't need a GMAT score, but what was your GMAT score? My GMAT score was 640, and some top universities, I don't think they take a GMAT score which is below 660, 670. Also, आपका graduation का score they prefer 2:1 या फिर above. So I think वहाँ थोड़ा सा कम रहने की वजह से a lot of universities might have passed on, and मैं जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी ये सजेस्ट करूंगा, आप जितनी जल्दी अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे उतना आपका चांस बढ़ता जाएगा. अगर आप लेट करेंगे फेब एंड मार्च के अंदर तो दे ऑलरेडी हैव देयर स्टूडेंट्स फिल्ड अप, तो आप उस हिसाब से ध्यान रखेंगे. ओके, एंड डिड यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ रिक्वायर्ड जीमैट स्कोर और नॉट? एट द टाइम ऑफ माय एडमिशन दे डिडंट रिक्वायर जीमैट. उन्होंने लिखा था इफ यू प्रोवाइड इट वी विल कंसीडर इट, बट इट्स नॉट अ मैंडेट दैट यू प्रोवाइड योर जीमैट स्कोर. उन्होंने बोला होलिस्टिकली देखेंगे, सो इफ यू प्रोवाइड इट गुड इनफ, नहीं भी दोगे तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट. डिड यू आल्सो गिव एनी language proficiency exam? Yes. So I gave IELTS, जिसमें मेरा score था 7.5, 7.5, which is I think good enough for most of the universities. Also, इसके लिए भी मैं बता देता हूँ, University of Bath didn't require an IELTS exam if you can provide the certificate from your university and school that your medium of examination language was English. तो ऐसा थोड़ा सा university के ऊपर depend करता है क्या requirements रहेंगी. Of course, सब कुछ लेकिन mentioned होगा उनकी website पे. Okay, perfect. ये तो हो गए सारे exams. Okay, now I have one more question regarding to your exams as well. GMAT और IELTS की तैयारी करने के लिए collectively तुम्हें कितना टाइम लगा? And tell me one good resource about GMAT. कहाँ से तैयारी? Okay, perfect. That's a good question. तो GMAT वैसे तो देखो सर subjective है, सब लोग अपना टाइम लेते हैं, but at least I would suggest कि 2 महीने सब लोग at least दें. उससे कम तो मतलब ही नहीं बनता. बिकॉज आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर स्कोर आने के चांसेस हैं. इंग्लिश उसका आसान नहीं रहता है जीमैट का, तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. एंड इसके अलावा आइल्स डजंट टेक मच ऑफ द टाइम, ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है. आई ओनली प्रिपेयर्ड फॉर 1 वीक और मोर देन 10 days समथिंग लाइक दैट, और उसमें हो गया था. बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि आपका जनरल इंग्लिश की तरफ अप्रोच कैसा है. तो ऑफ कोर्स ओके इतना लाइन है. ऑल राइट.
Now let's talk about your admission process. International students के लिए admission process जो है वो बहुत hectic होता है, right? बिल्कुल। Take a couple step backs and let's start from whenever you started researching. Take us Yeah. through your timeline. कब apply करना start करा? किस Hmm. time पे क्या-क्या activity हो रही थी? What are the important documents? Tell us something about that. Exactly. Okay. So I started around December. मैंने अपना research और GMAT वगैरह दे दूँ के December अपना which year? Which December year of was this? 2021. Okay, perfect. जस्ट आफ्टर कोविड एग्जैक्टली। तो उसके बाद मैंने रिसर्च करना स्टार्ट करके अपनी यूनिवर्सिटीज चूज करी सबसे पहले तो। एंड आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही रहता है कि आप ये मत देखो कि 50 या 100 यूनिवर्सिटीज हैं, सबसे पहले नैरो डाउन करा। यूनिवर्सिटीज को नैरो डाउन करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन बनाना पड़ता है, एक एसओपी बनाना पड़ता है। ये तो जनरल हो जाएगा आपकी सारी यूनिवर्सिटीज के लिए, बट काफी सारी यूनिवर्सिटीज के अपने सेट क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, कुछ बिहेवियरल, कुछ सिचुएशनल, कभी कभी टेक्निकल, बट जनरली टेक्निकल नहीं होते हैं। इन सबको आपको लिखने के बाद, अच्छे खासे आंसर्स देने के बाद सबमिट करते हैं आप। ऑफ कोर्स अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है इन एमबीए विच इज अ मस्ट, तो उसमें आपको कुछ रेफरेंसेस अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से लेने पड़ते हैं। समटाइम्स इट इज अ पीडीएफ व्हिच वर्क्स, जो आप अपलोड कर सकते हो। समटाइम्स दे सेंड आउट एन ईमेल टू दैट वर्क पर्सन्स प्रोफाइल। ये सब सबमिट करने के बाद उनका एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोफाइल वगैरह बन गया। उसमें दे ऑल्सो कीप आस्किंग इन द मिडिल, अगर आपकी प्रोफाइल में उनको कुछ मिसिंग लग रहा है तो वो आपसे सर्टिफिकेट्स मांगते हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स मांगते हैं। अच्छा। उसके अलावा आपका एड्रेस प्रूफ मांगते हैं, ऑफ कोर्स पासपोर्ट एंड ऑल। ये सब की एक अच्छी खासी मल्टी फोटोकॉपी प्रोफाइल आप बना के रखें एंड जब भी आपको देना हो ताकि आप इमीडिएटली सबमिट कर सकें। तो इन सब चीजों के ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में एंड प्रोवाइड करने में ये कितना टाइम लगा था? मेरे को इकट्ठा करने में अराउंड आई वुड से कि 1-2 हफ्ते से अराउंड मिनिमम तो लगेगा, बिकॉज आपको यूनिवर्सिटी से भी कुछ चीज निकलवानी पड़ती है एंड ये वो करना पड़ता है। बट आपके जो खुद के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग वो सब आप 1 हफ्ते के अंदर कलेक्ट कर सकते हो। ये सब सबमिट करने के बाद, हाँ जी, तो ये सब सबमिट करने के बाद यूनिवर्सिटी टिपिकली 15-20 डेज का टाइम लेती है रिप्लाई करने के लिए। बट ये नहीं बोलूंगा इस वजह से लोग अपनी होप्स कम कर देंगे रिप्लाई ना आ रहा हो तो, क्योंकि मल्टीपल विंडोज होती है तो वो रोलिंग बेसिस भी कर रहे होते हैं। राइट। एंड व्हाट अबाउट योर एसओपी एंड एलओआरस? कितने एसओपी लिखे तुमने? कितने एलओआर सबमिट करने पड़े? आजकल तो आई वुडंट सजेस्ट, बिकॉज ऑफ एआई लोग इस चीज को भूल जाएं, बिकॉज सबको मालूम चलता है जो पढ़ रहा होता है ये इंसान ने लिखा है या एआई ने। मैंने हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग एसओपी लिखा, जिसमें मैंने यूनिवर्सिटी की चीजों को देखा कि वो क्या ऑफर करते हैं, उनको क्या चाहिए रादर स्टूडेंट से, उस हिसाब से आप अपना एसओपी बनाएं। रेफरेंसेस मोस्टली आप 3 लेकर रख लें, कहीं पे भी आपको 3 से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एसओपी एंड ये एलओआर जो 3 तुमने लिए, ये किन किन लोगों के एलओआर्स थे? बेटर होगा अगर आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर या उससे ऊपर के पर्सन से लें, बिकॉज आपका एक क्रेडिबिलिटी स्कोर ज्यादा बनता है उससे। अगर आप अपने कलीग से लेंगे या फिर अपने असिस्टेंट मैनेजर से लेंगे, आई थिंक क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम रहेगी। बट ऑफ कोर्स अगर नहीं मिल पाए तो देयर इज नो अदर वे, बट ट्राई गेटिंग एक सीनियर का एलओआर बिकॉज इट वर्क्स रियली गुड। एंड व्हाट अबाउट अगर किसी प्रोफेसर से एलओआर ले रहे हैं या फिर एकेडमिक एलओआर जो लेना है वहां पे? एकेडमिक एलओआर भी, हाँ जी, इट समटाइम्स इज रिक्वायर्ड, नॉट मोस्टली। मैंने जितनी भी जगह अप्लाई करा, सिर्फ कनाडा की यूनिवर्सिटीज में आपको एकेडमिक एलओआर देना पड़ रहा था। तो मैंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल से ले लिया एक, एंड ऑफ कोर्स मेरे एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से। बट आई थिंक डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। आई थिंक उनको भी मालूम होता है कि कोई बच्चा अगर बाहर जाके पढ़ना चाहता है, उनके सेट प्रोसीजर्स हैं, वो एक टिपिकल लेटर उनके पास रेडी होता है, तो यू कैन जस्ट गेट इट। ओके, परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीजा इंटरव्यू। व्हाट हैपेंड इन योर वीजा इंटरव्यू? वीजा इंटरव्यू विद यूके, इट्स नॉट दैट टफ टू बी ऑनेस्ट, इतना दिक्कत नहीं रहता। सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट पक्की कर लें सबसे पहले। उससे भी पहले आपको कैस एक डॉक्यूमेंट होता है जो यूके की यूनिवर्सिटीज भेजती हैं। जब तक वो नहीं आता तब तक आप अपना वीजा प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड जैसा यूके है, आई डोंट थिंक कि दे आर एज स्ट्रिंजेंट एज द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगर आपके पास आपके बैंक में फंड्स हैं, आप सही टाइम पे सब कुछ कर रही हो, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है। ओके गाइस, चिराग हैज टोल्ड अस कि यूके देखो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है नहीं वीजा के लिए। अगर किसी का भी वीजा रिजेक्ट हो रहा है, चिराग का लिंक्डइन प्रोफाइल हमने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो हैव अ फाइट विद चिराग, ठीक है ना? बट यस, जोक्स अपार्ट, वर यू आल्सो यू नो, तुम्हें वीजा इंटरव्यू के लिए भी कोई एसओपी लिखना पड़ा था? नहीं, ऐसा कुछ वीजा के लिए नहीं लिखना पड़ता। आई थिंक आपके बैंक डिटेल्स सब कुछ कैश, अगर आपका कैश आ गया तो वीजा ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है फिर। अच्छा, ओके।
वीजा इंटरव्यू के कितने टाइम बाद तुम्हें अपना वीजा रिसीव हुआ था? मेरे केस में इट्स वेरी स्पेसिफिक। जनरली दे से कि 3 वीक्स लगते हैं, बट बिकॉज कोविड के बाद वाला बैच था मेरा, तो एवरीबडी वाज अप्लाइंग टू द यूके, तो मेरे 8 वीक्स लग गए। सो आई वाज आल्सो स्केर्ड अ लिटिल कि दिक्कत हो गई, तो फ्लाइट्स वगैरह भी बुक करनी रहती हैं, बट टिपिकली नाउ डेज इट डजंट टेक मोर देन अ मंथ। ओके ओके, सो यू मेंशन्ड कि फ्लाइट्स वगैरह बुक कर दी है, राइट? माय क्वेश्चन इज, फर्स्ट टाइम तुम क्या क्या सामान लेके गए थे इंडिया से? क्या क्या मसाले लेके गए थे बेसिकली? ये सब क्वेश्चन का आंसर तो अभी भी ढूंढ रहे हैं कि क्या लाना चाहिए था क्या नहीं। एक चीज तो मैं जरूर बोलूंगा भाई, कुकर्स जरूर अपने लेकर आना। यहाँ पे नहीं मिलते, मिलेंगे तो फट जाएंगे, बहुत ही बेकार है। ओके यहाँ पे ना इंडक्शन बेस्ड वाले हीटिंग हैं सारे, कोई भी गैस वाले नहीं रहते जनरली। लंदन वगैरह में हो सकता है, कुछ पुराने घरों में हो, बट आप सबसे कुछ ज्यादा ही गर्म कपड़े जो साइज ज्यादा हो वो मत लाना। रादर आई वुड से गर्म कपड़े लाओ जो कम जगह लें, एंड क्योंकि आपको एनीवे गर्म कपड़े यहाँ से लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ की ठंड इंडिया से मैच नहीं करती। ट्राई करो कि आप वाटरप्रूफ चीजें ज्यादा ला पाओ, बारिश कभी भी हो सकती है यहाँ। आप अम्ब्रेला जो इंडिया में यूज करते हो मत ही लाना, उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हवा तेज चलती है कि आप अपने अम्ब्रेला के साथ उड़ रहे होंगे। तो बहुत कम यूटेंसिल्स लाओ, बहुत कम यूटेंसिल्स लाओ, जितने कम ला सकते हो। बस ऐसी चीजें लाओ जो आपको मालूम है कि आपके रीजनल हाउस के हिसाब से जो बनती हैं वो यहाँ नहीं मिलेंगी। तो छोटी सी आप एक प्लेट ले आओ, 2-3 स्पून, फोक, नाइफ ले आओ। नाइफ तो वैसे ही अलाउड नहीं है ये सब चीजें, तो आप कम से कम लाने की कोशिश करो यूटेंसिल्स। कपड़े एंड बेड शीट्स भी मत ही लाओ, बिकॉज यहाँ बेड्स का साइज डिफरेंट रहता है। बेटर होगा आप यहाँ से ले आए, एक आध आप शीट्स रख लें इमरजेंसी यूज के लिए, बाकी सब आपको यहाँ से नहीं लेना ही पड़ेगा, एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, मैनेजेबल। ठीक है, ओके। खाने के रिगार्डिंग क्या क्या लेके जाना चाहिए? बिकॉज अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सब कुछ पैक करते हैं यार, मसाले से लेकर मतलब आई डोंट नो, सब काफी चीजें, रैंडम चीजें लोग पैक करते हैं। सो आई थिंक गलत करते हैं, सब कुछ पैक मत करो। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, एक्सेप्ट आप रेड स्पाइस पाउडर अपना पैक लेकर आओ, बट उसका ध्यान रखना आप उसको चेक इन लगेज में डालो, बिकॉज उसमें निकलवा देते हैं अदरवाइज हैंड लगेज में। तो आप अपने रेड स्पाइसेस ले आओ, सॉल्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नमकीन नहीं है, सॉल्ट ले आओ, हल्दी वल्दी ले आओ, जो बेसिक आपको एवरीडे आपके मसाले हैं वो ले आओ, धनिया पाउडर एंड एवरीथिंग। बाकी मोस्टली जितने भी जैसे जीरा एंड अदर स्पाइसेस हैं वो सब मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप लोगों को साउथ इंडियन थोड़ा सा खाना पसंद है, करी पत्ता एंड तेज पत्ता वगैरह जरूर ले आना, वो थोड़ा सा टफ है। ऑफ कोर्स ओके। सो नाउ तुम्हारी पैकिंग हो गई है, तुम निकल चुके हो यूके के लिए। आई वांट यू टू टेल अस कि व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब तुम यूके लैंड करे? सबसे इम्पोर्टेंट, सिंस मैं दिल्ली से हूँ, मैंने पहले बाहर निकलते ही जो सांस ली पूरी लंग्स तक पहुंची। लंग्स को अच्छा लगा तुम्हें? अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। यस। सो या यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा अमेजिंग है, इतना क्लीन रहता है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लोग हॉन्क नहीं करते। तो आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले आपको ऐसा लगा कि सारे इंसानों की तरह आप भी इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे। यहाँ पे वो क्लास सिस्टम बहुत कम है, यहाँ पे लोग सबको बराबर देखते हैं। एंड बाहर निकलते इट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट कि यूके आ गया है, एवरीथिंग इज क्लीन, सड़क पे कचरा नहीं है, लोग सांस ले रहे हैं आपस में। एक तो यूके का कल्चर थोड़ा सा ज्यादा ही आपस में सॉरी थैंक यू वाला है, तो सब फॉर्मल से रहते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, बिकॉज दे डोंट डिस्क्रिमिनेट एज मतलब एज ऑन योर फेस। अगर आप थोड़ी सी हरकतें करोगे जैसे आप दिखा रहे हो तो फिर बात अलग है। परफेक्ट, ठीक है। तो इंडियंस के लिए बहुत जरूरी है यार कि भाई बाहर जाके कोई हरकत मत करो। Exactly. Just be very respectful and yes. So what happened during the initial weeks of your college and what was your first reaction about your college जब college देखा था? So because University of Bath एक काफी prestigious और पुरानी यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट टाइम इंटर होते ही all the students, चाहे वो किसी भी कल्चर के हों, to be honest, सबकी आंखें खुली रह गई थी कि कितना अमेजिंग और बड़ा कैंपस है, पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ का। इट इज वेरी मच लेड आउट ओवर अ हिल, पूरा हिल का एक कैंपस हमारे लिए ही सेटअप है, यूनिवर्सिटी के लिए अलग से वो एरिया बना हुआ है। इट्स अमेजिंगली वेल, आर्किटेक्चर इज वेरी गुड। यहाँ पे आर्किटेक्चर तो ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज, विक्टोरियन और ये ग्रेगोरियन आर्किटेक्चर बहुत अमेजिंग है। एंड आई थिंक ट्रांसपोर्ट की वजह से आपको कभी भी दिक्कत होती ही नहीं है। इन बाथ द बसेस कीप ऑन रनिंग फॉर 24 आवर्स, तो वो बहुत ज्यादा आपको सहूलियत देता है कि आप कभी भी कहीं से इधर उधर आ जा सकते हो। तो यूनिवर्सिटी एंटर होते ही एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी कि ये सब हमारे को अगले साल के लिए मिलने वाला है। You know what, people who are going to watch this video,
comment section में बताओ if you want Chirag to do a campus tour of University of Bath. Maybe we'll talk to him and maybe we'll get it fixed. Why not? If the campus not? is so beautiful, right? Sure. Okay. So orientation वगैरह हो गया है. Now you've met your batch, your faculty as well. Let's talk about that. How was your batch looking like? मतलब कितने students थे? उनका average profile क्या था? If you could take us through that. मेरा MBA क्लास का साइज था अराउंड 47 स्टूडेंट्स एंड ओवर वर्ल्ड वाइड लोग आए हुए थे. मोस्टली एशिया से थे, इंडिया एंड थाईलैंड से काफ़ी लोग थे, बट अदरवाइज सारी कंट्रीज कवर हो रही थी. अफ्रीका हो रहा था, खुद यूके था, अमेरिकाज थे. सो 47 लोगों का प्रोफाइल वाज वेरी गुड फॉर अस कि वो छोटा है एंड इस वजह से काफ़ी हमें हेल्प मिली. एज ब्रैकेट आई वुड से जनरली वाज अराउंड 27 के आसपास से लेकर 35 तक इज दी MBA का जनरल प्रोफाइल. इसके बाहर आउटलायर्स ऑफ कोर्स हो सकते हैं, बट वो बहुत माइनॉरिटी में रहते हैं एंड सबका वेरिड एक्सपीरियंस था. कोई बायोलॉजी से है, कोई इंजीनियरिंग से है. ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग वाले MBA थोड़ा ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट हमारी क्लास में आई एम वेरी हैप्पी. बहुत सारे सेल्स, मार्केटिंग, हर एक्सपीरियंस का बंदा था. Perfect. And what about the faculties जो तुम्हें पढ़ा रहे थे? What were their backgrounds and how helpful were they in your whole journey of MBA? So faculties के लिए I would like to actually commend my university कि जिन लोगों को उन्होंने as a faculty रखा हुआ है for us to teach, सारे at least 30+ years of experience holders हैं, अपनी फील्ड में दिग्गज हैं एंड मोस्टली सारे ऑथर्स हैं. सो अगर आप MBA लेवल पे जा रहे हो, आपको काइंड ऑफ चाहिए होता है कि जो आपको पढ़ा रहा है उसे खुद भी सारी चीजें आती हों. एंड सिंस इतने पहुंचे हुए लोग थे, उनसे आप बात करते हो तो आपको उनका प्रोफेशनलिज्म वहीं से समझ आने लग जाता है. एंड दैट इज व्हाट माय अर्लियर पॉइंट अबाउट एक्सपोजर वाज. यही सब देखने सीखने के लिए आपको बाहर की कंट्रीज का एक्सपोजर बहुत हेल्प करेगा. दीज पीपल आर वेरी हेल्पफुल. आप एक ईमेल करो, शाम तक आपको रिप्लाई आ ही जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एंड ये फैकल्टी मेंबर्स प्लेसमेंट्स के टाइम भी कुछ हेल्प करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स नेटवर्किंग प्लेज अ लॉट ऑफ रोल इन फॉरेन लैंड. सो व्हाट्स द सिचुएशन विद दैट? सो यूके में आप ये बिल्कुल भी अज्यूम मत करो कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स होंगी. बिल्कुल आपने सही बोला, नेटवर्किंग इज द की यहाँ पे. तो आप जितना बात करोगे, तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से अगर आप मिलोगे क्लास के बाद, आप उनसे बात करोगे कि इस फील्ड में मेरे को मेरा इंटरेस्ट दिख रहा है, क्या आप मेरे को लिंकअप कर सकते हो किसी से, वो आपको जेन्युइनली अपने कलीग्स, अपने बिजनेस ओनर्स, जो क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा रहेगा, तो वो आपको बहुत अच्छे लोगों से मिलवाते हैं. एंड एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा. आप ये मत सोचो कि वो अपने आप आपको ला कर देंगे, प्लेट में स्पून फीड करेंगे. आप जितना उनके पीछे लगोगे, आप अपनी तरफ से अपनी प्रोफाइल बेटर करने की कोशिश करते रहोगे, आप साइड हसल्स करते रहोगे, लिंक्डइन लर्निंग या जो भी प्रोसेस रहेगा आपका, ये सब चीजें उनको बहुत भाती हैं. तो आप जितना इन चीजों को करोगे, चेज अप करोगे उनसे, ये सब वो आपको जेन्युइनली हेल्प करेंगे. और मैंने अपने काफी कॉलीग्स को देखा है, they are getting placed because they did talk to their professors. Perfect, yeah. That's very nice. If the faculty is so helpful, मतलब ये जो fear है ना कि यार placements नहीं होते हैं बाहर, because we Indians are used to getting the process of placement, right, in our colleges. Yeah. So yes, this is very helpful. चलो, okay. College के बारे में we'll talk more, but now I want to switch towards accommodation. Where were you living? On campus रह रहे थे, off campus रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे? I was living off campus because I think post grads को हमारी यूनिवर्सिटी प्रेफर्स कि बच्चों को अंडरग्रेड्स को यूनिवर्सिटी में रहने दे कैंपस में, बाकी पोस्ट ग्रेड्स बाहर सिटी में रहें एंड एक्सप्लोर करें, ऐसे करके. तो मैं पोस्ट ग्रेड अकोमोडेशन में रह रहा था आउटसाइड द कैंपस ऑफ. अच्छा, तो घर कैसे मिला? हाउ डिड यू फाइंड आउट योर प्लेस? सो आपके पास दो रूट्स रहते हैं. या तो आप कोई प्राइवेट अकोमोडेशन लेना चाहो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ मिलके या नोन्स के थ्रू, या फिर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, उन्हीं के खुद के स्पॉन्सर्ड अकोमोडेशंस होते हैं. आप उसमें से 9-10 अकोमोडेशंस की चॉइसेस रहेंगी. आप उसमें से अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से चूज कर सकते हो. ऑफ कोर्स रेंट भी वहीं पे सब दिया होगा. दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को कम एक्सप्लोर करते हैं. प्लीज करें, क्योंकि सब कुछ डिटेल्स आपको जनरली वहां मिलेंगी. कि आसपास क्या है, रेंट क्या रहेगा, क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, क्या नहीं. मैंने उसी हिसाब से अपना क्विला कोर्ट नाम से अकोमोडेशन चूज करा, जिसका रेंट वाज अराउंड 194 पर वीक, which was in my budget, and it was in the around the city center as well. तो मुझे इस चीज में भी बहुत हेल्पफुल रहा वो. But what is the average rent over there? Average rent आपको अगर आपके बहुत extravagant खर्चे नहीं है, of course, तो around 190-200 के आसपास per week pounds
आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 200 पाउंड्स इज अ वेरी गुड एवरेज इन बाथ। ओके, थोड़ा सा हल्का सा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर्स, राइट बट राइट दिस राइट। इज द जनरल थिंग वहाँ पे। बट लेट्स से नाउ टॉकिंग अबाउट द मंथली एक्सपेंसेस, तो रेंट का तो एक पोर्शन हो गया, व्हाट आर द Yeah. अदर एक्सपेंसेस दैट यू इनकर ड्यूरिंग द होल मंथ? ओके सो अगर आप खाना पीना खुद बनाना प्रेफर करते हो तो ग्रोसरीज इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितना बड़ा हवा फैला हुआ है इंडिया के अंदर कि यूके में ये महंगा है वो महंगा है। अगर आप जनरली थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो ग्रोसरीज का खर्चा आई डोंट थिंक आपका 200 पाउंड्स के ऊपर आता है मंथ में, अगर आप बहुत ध्यान से खा रहे हो पी रहे हो। ऑफ कोर्स आप बाहर खाने जाते हो कुछ भी करते हो तो पर मील आपको कॉस्ट 15 पाउंड से कम नहीं बैठता। अगर बहुत ही तरीके से मतलब चिंदीबाजी करके आप खाओगे तो 10 पाउंड बैठ जाएगा, बट अगर आप अच्छी जगह से खाओगे तो 15 पाउंड इज फॉर एवरेज फॉर अ मील। ओके, ड्रिंक्स का भी अगर आप लेते हो तो अराउंड 6 to 7 पाउंड्स पर ड्रिंक बैठ जाता है। तो इफ यू आर कुकिंग एट होम एंड मैनेजिंग इट वेल तो नहीं आएगा ज्यादा खर्चा, दिस आई कैन से। एंड व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, द वाटर All बिल्स, द included, अदर? all included. In the अच्छा, ओके university sponsored accommodations and others as well, all included. Just आपको rent का 194 जैसे I was paying per week, उसमें सब included होता है, even maintenance. Of Okay. course आप कुछ खर्चा वगैरह मतलब तोड़ फोड़ दो तो फिर आप अपनी जेब से दोगे। ओके, सो नाउ लेट्स पुट अ पिन टू दिस मंथली एक्सपेंस का एक नंबर मुझे बताओ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को इतने पाउंड्स तो चाहिए ही एक महीने में सरवाइव करने के लिए। I would say around 500 to 600 पाउंड्स का वो एक एस्टिमेट एटलीस्ट लेकर चलें। 600 पाउंड्स मैं बोलूंगा लेकर चलें, इससे कम अगर वो सोच रहे हैं तो बहुत चीजें कट ऑफ करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है क्योंकि कुछ लोग मोबाइल बिल छोटा रखते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा हॉवर करता रहता है, बट नॉट मोर देन 100 आई वुड से। ये सब कुछ तुम रेंट वगैरह सब इंक्लूड करके बता रहे हो? रेंट हो गया आपका, आपका यूनिवर्सिटी जाने का चार्जेस हो गया बस के थ्रू, उसके अलावा आपका खाने पीने का हो गया, अगर आप थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करते हो वो हो गया। उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता कौन कितना ज्यादा करता है, उसके हिसाब से Right, खर्चा, right. बट अदरवाइज आई डोंट थिंक इससे ज्यादा आता है अगर आप ठीक एक है। बहुत अच्छे नॉर्मल तरीके से जियो। चलो 600 पाउंड्स हो गए तुम्हारे महीने के खर्चे। नाउ Yeah. व्हाट इज योर ट्यूशन फी? Okay, so tuition fee in my university was 37,500 pounds. ओके ओके एंड इसके बाद आपके पास स्कॉलरशिप के ऑप्शंस तो होते हैं, बट एमबीए का खर्चा थोड़ा ज्यादा रहता है कंपेयर टू अदर एमएससी प्रोग्राम, राइट राइट क्योंकि आपको फिर होपफुली आरओआई भी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको ज्यादा ही मिलेगा। ऑफ कोर्स यू हैव गॉट अ स्कॉलरशिप, राइट? आई हैव गॉट अ स्कॉलरशिप। टेल अस समथिंग अबाउट दैट। वो स्कॉलरशिप कैसे मिली है? मेरिट बेस्ड है, नीड बेस्ड है, क्या है? या सो अच्छा एक वो पॉइंट उठाया कि नीड बेस्ड या मेरिट बेस्ड। सो in my university it was clearly written कि these scholarship are not meant for need based, rather these are merit based. अगर need based है तो just contact the university support team, वो आपको देखेंगे, and अगर case specific बैठा तो वो कम भी कर देंगे। In my case it was divided into a lot of categories, जिसमें they were supporting either 15,000 का scholarship या 10,000 का। Only 2 to 3 people in 3 windows will get it. So मान लो around 47 में से 10 to 12 students were on scholarship, and मेरे को fortunately 10,000 का scholarship मिला, so मेरा tuition fees कट के 27,500 pounds हो गया था। अच्छा, ओके ओके, that's great. And so scholarship का process थोड़ा सा आपके application university process से tough रहेगा। Of course वो आपसे expect कर रहे हैं कि merit based अगर आप आ रहे हो तो उस हिसाब से आप अपनी skills भी दिखाओ, आपको video interview submit करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे आंसर्स देने पड़ेगी, यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर क्यों करे, तो आप उस कुछ अपने स्कॉलरशिप के प्रोसेस के बारे में बताओ, कब स्टार्ट करा था, क्या क्या स्टेप्स थे इसमें? राइट, सो सबसे पहले आपको एक कंफर्मेशन लेटर चाहिए यूनिवर्सिटी से, जिसमें 2-3 लैंग्वेज वगैरह की कंडीशंस के अलावा आपका बाकी एक्सेप्ट हो चुका था ऑफर। उससे पहले आप स्कॉलरशिप अप्लाई जनरली नहीं कर सकते। उसके बाद एज सून एज यू गेट दैट लेटर, आपके पास एक छोटी सी विंडो होती है जिसके अंदर आपको 2 क्वेश्चंस थे मेरे केस में कि यूनिवर्सिटी को आपसे क्या फायदा होगा एंड हाउ यू वांट टू लेवरेज दिस स्कॉलरशिप, कि उससे आप आगे क्या करने वाले हो। वी कैन नॉट जस्ट स्पॉन्सर एनीबॉडी, इसका कोई गोल नहीं है। राइट क्वेश्चंस को आंसर करके आपको एक 3 मिनट का वीडियो सबमिट करना था, जिसमें यू हैव टू टॉक अबाउट हाउ इट्स गोना हेल्प देम, हेल्प यू, एंड इस सब का मतलब क्या है। सो जनरली दीज क्वेश्चन आंसर्स आर वेरी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंड समटाइम्स ईयर स्पेसिफिक एज वेल, लेकिन 3 दिन के अंदर उस चीज का जवाब मेरे को आ गया कि यस you are chosen for the scholarship, and congratulations and all. Perfect. Now I want to ask कि तुम अपने स्टडीज स्पॉन्सर कैसे कर रहे हो? सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हो या कोई लोन वगैरह ले रहे हो? मेरे केस में मैंने स्टूडेंट लोन नहीं लिया, बिकॉज मेरे और मेरे फादर का एक बहुत बिलीफ है कि हम लोग निकलते ही यूनिवर्सिटी से अपने सर के ऊपर थोड़ा सा टेंशन नहीं चाहते कि सबसे पहले लोन वापस करना, एंड हम थोड़ा सा एजुकेशन को घर में थोड़ा ज्यादा मान्यता देते हैं, तो हमने ये बोला कि बाकी चीजों पे कम खर्चा कर लेंगे, एजुकेशन टेंशन फ्री। ऑफ कोर्स ओके, परफेक्ट।
बट डू यू हैव एनी आइडियाज कि अगर किसी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को लोन चाहिए तो आजकल इंटरेस्ट रेट्स कितने चल रहा है? इंटरेस्ट रेट्स गारंटी के साथ नहीं कह सकता परसेंटेज क्या है, बिकॉज आई वुड वांट इट टू बी क्रेडिबल, बट ऑप्शंस बहुत सारे हैं, चाहे आप यूके से लें चाहे इंडिया से, प्रेफरेबली इंडिया से ही लो, क्योंकि बैंक के साथ मैनेज करना आसान रहेगा, फंड्स वगैरह भी। स्टूडेंट लोन, मेरी क्लास के अंदर मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टूडेंट लोन पे थे, एंड किसी को भी ऐसा दिक्कत नहीं आई, एवरीबडी इज मैनेजिंग, एंड होपफुली जॉब के साथ वो क्लियर ऑफ करना भी स्टार्ट कर देंगे इन द नेक्स्ट ईयर। परफेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर कोर्स इन द करिकुलम। अपने एमबीए कोर्स के बारे में कुछ बताओ, क्या स्पेशलाइजेशन था? एक साल, आई एम अज्यूमिंग कि एक साल का ही कोर्स है, स्पेशलाइजेशन कुछ होगा नहीं, बट इफ था तो कब तुमने स्विच करा, क्या डोमेन लिया, एंड व्हाट ऑल वर यू स्टडी? आपने एकदम सही बोला कि एक साल के कोर्स में स्पेशलाइजेशन का तो सिचुएशन था नहीं। इन लोगों ने कैसे करा हुआ है कि आपके कुछ कोर मॉड्यूल्स होते हैं जो सबको पढ़ने ही पड़ेंगे, इसके अलावा स्टूडेंट्स को ऑप्शन मिलता है कि वो ऑप्शनल मॉड्यूल्स ले लें आफ्टर द कोर मॉड्यूल्स आर डन। वो आप अपने चूज ऐसे कर सकते हो कि आपको जिस फील्ड में, फॉर एग्जाम्पल किसी को एनालिटिक्स में आगे जाना है तो उनके लिए एडवांस बिजनेस एनालिटिक्स का ऑप्शनल मॉड्यूल है, बट किसी को नहीं चाहिए तो वो छोड़ सकता है। ब्रांड मार्केटिंग है, इसके अलावा सप्लाई चेन है, काफी जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, जो फाइनेंस हो गई, अकाउंट्स हो गई, इन सब के ऑप्शनल मॉड्यूल्स जो एडवांस लेवल पे आपको पढ़ाते हैं, इन सब आपको चॉइसेस मिलते हैं। बट द कोर मॉड्यूल्स व्हिच एवरीबॉडी हैव टू स्टडी कवर ऑल द एरियाज इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो मैनेजिंग पीपल हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो एनालिटिक्स हो, चाहे सप्लाई चेन, इसके अलावा आई थिंक मोर लाइक 1 and 2 मोर लाइक दिस। तो 8 कोर मॉड्यूल्स एंड 4 ऑप्शनल मॉड्यूल्स। तुम्हारे ऑप्शनल्स क्या क्या थे? मेरे ऑप्शनल, सिंस मेरा थोड़ा फाइनेंस बैकग्राउंड है, तो सबसे पहले तो मैंने एक फाइनेंस का ऑप्शनल मॉड्यूल लिया था। इसके अलावा आई वांटेड टू अंडरस्टैंड ब्रांड मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आगे ऐसे रोल्स देखने हैं तो, एंड आजकल सबसे हॉट टॉपिक एडवांस बिजनेस एनालिटिक्स चल रहा है, तो मैंने वो भी लिया, एंड आई टॉप्ड माय क्लास इन दैट मॉड्यूल, सो आई एम वेरी हैप्पी कि वेरी नाइस, परफेक्ट, दैट्स ऑसम। थैंक यू सो मच, या थैंक यू सो मच। एंड एक सप्लाई चेन के बारे में मॉड्यूल लिया था, सो दैट आई a very complete understanding of the whole management scene in the world. Right, this is a very whole, ऐसा holistic, एकदम proper तुमने अपने courses choose कर रखे हैं। Nice, nice. Right. Thank you. I have one question about the dissertation program जो कि University of Bath में होता है, because I was researching and I found out कि standard dissertation वहाँ पे नहीं है। So, do you want to tell us something about that? कि क्या है exactly and what's the whole process about it? This is very unique to University of Bath. तो इनका एक मल्टी प्रोजेक्ट स्वीट के नाम से प्रोग्राम है जो आपकी स्टडीज के साथ साथ चलता रहेगा। इसमें 4 मॉड्यूल्स रहेंगे which is mostly concerned towards entrepreneurship and consulting. Okay. तो इनमें से 3 मॉड्यूल्स तो आप सबको करने पड़ते हैं। कंसल्टिंग, चेंज इन एक्शन, कि आप जो कंसल्ट करते हो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। एक एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल जिसमें ग्रुप्स में डिवाइड होकर आप एक आइडिया बनाते हो और उसकी फीजिबिलिटी बताते हो। जो लास्ट में ऑप्शन है इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, वो या तो आप ग्रुप चूज कर सकते हो जिसमें आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी वाइल कंसल्टिंग अ वेरी गुड क्लाइंट, वो क्लाइंट्स यूनिवर्सिटी ही अरेंज करती है। या फिर आप ऑप्शन चूज कर सकते हो कि आप सेल्फ मेड डिसर्टेशन लिखना चाहते हो। होपफुली सबसे अच्छी बात है कि आपको 7000 वर्ड्स का ही डिसर्टेशन लिखना है, तो इट्स नॉट वेरी हेफ्टी, बट मोस्ट पीपल चूज द ग्रुप 1 ताकि थोड़ा हल्का रहे, बिकॉज जॉब एप्लीकेशंस भी साथ साथ उस टाइम तक चालू हो जाते हैं। राइट, तो डिसर्टेशन का भी ऑप्शन है, इट्स जस्ट दैट यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में देयर इज वन मोर वे ऑफ डूइंग दिस। Yeah, right. But dissertation, I won't say कि complete dissertation है, because it's a part of that multi-project suite, right. And उसका वैल्यू भी उतना ही रहेगा। तो ये मल्टी प्रोजेक्ट स्वीट जो है ये किन क्लाइंट्स के साथ हो रहा है, एंड यूनिवर्सिटी जिन क्लाइंट्स के साथ अरेंज कर रही है उनके साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशियो कैसा है? ओके, सो यूनिवर्सिटी काफी अच्छे क्लाइंट्स, आई वोंट से द टॉप टियर अरेंज कर रही है। इट काइंड ऑफ मैटर्स कि साल कैसा जा रहा है, बातें कैसी चल रही हैं, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि IBM वगैरह जैसे क्लाइंट्स भी हमारे थे। मेरी टीम का क्लाइंट IBM था। तो अच्छे क्लाइंट्स रहते हैं, कुछ स्टार्टअप्स भी रहते हैं कि कुछ लोगों को वैसा फील्ड कुछ कॉन्फ़िगर करना है तो। एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड में आपको ये बोलूंगा कि अगर आप जेन्युइनली थोड़े से, जैसे आपने पहले पॉइंट बोला, नेटवर्किंग करते रहें, तो अगर आप इनसे कम्युनिकेशन में रेगुलरली रहें, तो आई हैव सीन मेरी यूनिवर्सिटी से 5 पीपल आर वर्किंग फॉर दीज कंपनीज जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए थी। तो या सो यू हैव टू बी वेरी, आई वुड से कि आप बहुत एनर्जेटिकली अपनी MBA को अप्रोच करें, क्योंकि एक भी मौका अगर आपने छोड़ दिया, इट कुड एक्चुअली रिजल्ट इन यू नॉट गेटिंग अ जॉब, पोटेंशियल जॉब। राइट, तो and also this is just a 1-year course, so everything will be very accelerated, right? Yeah, perfectly said. Yeah. Now what about the whole job prospect and future prospect? What do you have plans for yourself? Okay, so मेरा plan तो अभी I am touch wood, I am employed अभी recently.
So yeah, I'm happy with that. I'm gonna continue working there. Sponsored. कहाँ से जॉब मिली है, क्या है, कुछ बताओ उसके बारे में. Yeah, yeah. So मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड था, तो I applied for a job in the same role in Nestle, जिसका एक सब ब्रांड है Nespresso, कॉफी का ब्रांड है. एंड वहाँ पे मेरे को एक ऑपरेशंस की टीम के अंदर फाइनेंस का रोल मिला है, विच इज गुड एंड पेज ओके. बट सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नेस्ले का टैग मिल जाए. Right. Of course, I went for that, but a lot of people still are looking for jobs. किसी को अपनी choice की मिली, किसी को नहीं मिली. But that's where graduate visa helps कि आप रुक के देख भी सकते हो अगर नहीं भी मिलता. Right. And you can stay there for 1 more year, right? 2 more years, full 2 years. You can stay, yeah. Yes, you can stay there for 2 more years. Okay. Yeah. And what about just your... एक disclaimer दे सकता हूँ मैं कि कुछ लोगों को दिक्कत ना हो. बहुत लोग आपको मिसडायरेक्ट करेंगे कि आप जॉब्स अब अप्लाई करें, इस टाइम सही नहीं है, ये मार्केट सही नहीं है. आप प्लीज इनकी ना सुने. आप चाहे तो जनवरी से ही अप्लाई करना शुरू कर दो. मेरा सेशन अगस्त सितंबर में स्टार्ट हुआ था, मैंने जनवरी से ही देखना स्टार्ट कर दिया था. कुछ लोगों ने अभी 2 महीने पहले देखा, उनको भी मिल गए. बट प्लीज किसी की सुनिए मत. बस दैट्स माय डिस्क्लेमर. Perfect. Okay. Now, what about your other batchmates? कितने students अभी तक place हो गए हैं? And how many are remaining, if you have any idea? Yeah, sure. Around 50% students are placed. As in, उन्होंने खुद ही ढूंढ के करा. University does keep sending out some roles वगैरह, but आपको खुद ही करना पड़ता है. It's just like उन्होंने बता दिया कि ऐसा है. तो 50% students are placed. Mostly the Asian people, जैसे थाईलैंड के कुछ लोग थे, उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर रेंट दे के ढूंढना might not be the best idea. तो वो अभी भी जॉब सर्च कर रहे हैं, but they went back to their home. तो ऐसा mix and match of everybody है, but mostly people are staying. अच्छा, okay. And what is the average salary that we can look for अगर University of Bath से graduate हो रहे हैं? काफी खतरनाक क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि आजकल मार्केट की थोड़ी सी हालत डाउन चल रही है. बट आफ्टर एन MBA you can expect at least 45 to 50,000 pounds का annual package. तो you should look out for 40 से 50,000 का annual package. Okay. Tell me the lowest package जो तुम्हारे senior batch में गया हो, and the highest package जो तुम्हारे senior batch में गया हो. Highest in senior as well. Okay. Yes. So last year highest 65-70 तक गया था, but that was because the person had around more than 10 years of experience. तो वो उस हिसाब से मिलता है package. And last year सबसे lowest, I don't think it went below 40, which is the same case this year as well. Minimum 40 से नीचे नहीं जा रहा, but average और maximum थोड़ा सा down हो गया. So आजकल average 50 to 55 का चल रहा है. And लोग कौन से roles ज़्यादा prefer कर रहे हैं after graduating from University of Bath? After University of Bath, at least assistant manager role से नीचे कोई prefer नहीं कर रहा है. या यहाँ पर एक position ज़्यादा चलती है अगर आप consulting में जाना चाहते हो. तो कंसल्टेंट नाम का टैग जैसे BCG, McKinsey, मेन वगैरह. राइट. तो ऑल्दो इट्स नॉट अ मैनेजर वर्ड रोल, बट आप ऑफ कोर्स आप एक टीम के लीडर होते हो. तो कंसल्टेंट्स एंड असिस्टेंट मैनेजर इज द मोस्ट चेज्ड आफ्टर पोजीशन इन आफ्टर UK Bath. Perfect. Chirag, we have a couple more questions जो कि हमें सर्च इंजन प्लेटफॉर्म से मिले हैं, and try answering to these. The first question is University of Bath very difficult to get in? I would say it's average. It's not very tough, it's not very easy, it's average. Perfect. Is University of Bath a good university for your program? It is a good university. Okay, perfect. Is University of Bath expensive? University of Bath expensive? I would say between expensive and between okay, it's little expensive. Okay, all right. Because Bath is a thoda sa acha area considered. All right. I think we are done with these 4 questions. Now I want to play a small rapid fire round with you. Oh. Right. And my request is just be very rapid with your answers and be honest. That's all. So you're ready? Ready. Cool. My first question is tell me one pro and one con about studying at University of Bath. Pro है कि बहुत सुंदर है, सिटी बहुत सुंदर है, लोग अच्छे हैं. कौन है थोड़ा महंगा है यार. अच्छा, ठीक है. Your favorite hangout spot at the University of Bath? Lakeside, जहाँ पे सारी दुनिया आके साथ में बैठती है and they are chilling. Yeah. Okay, perfect. If not University of Bath, then कहाँ पे हो तो तुम अभी? Durham University, because उसकी ranking and उसके prospects काफी अच्छे जा रहे हैं आजकल. Okay. Tell me one good thing and one bad thing about your program. Good thing is कि सारे modules पे focus किया, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ये वो. Bad thing is कि diversity में थोड़ा और better हो सकते थे, at least in my batch. Okay, perfect. What would you recommend as a good hangout spot for students around your university?
सबसे पहले तो खाने पीने की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि रात में डोनर कबाब की वैन्स लगती है, वहाँ Okay. जाके बहुत लोग चिल करते हैं। अदरवाइज वहाँ पे एक इट्स काइंड ऑफ अ छोटा सा वाटरफॉल काइंड ऑफ, एंड वो इट्स द बेस्ट स्पॉट टू हैंग आउट इन द नाइट एज वेल। Which waterfall is this? If you It's not a waterfall, I would say. It's like a river. It's River Avon, बात जहाँ पे based है. But उसी के कुछ steps ऐसे बने हुए हैं कि वो आवाज और वो feel ऐसी आती है आपको कि आप खुद ही बस हो जाते हैं. Right, perfect. Okay, my last question now. Out of 10, try and rate your university. Out of 10, I would rate it 8. 8. 2 marks Yeah. क्यों काटे? 2 मार्क्स इसलिए काटे बस कि एक तो कुछ लोगों को ये रहता है कि ये रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है, तो उनके लिए कम हो जाता है। ऑल्दो आज की डेट में मैटर कुछ नहीं करता है, बट स्टिल रैंकिंग में थोड़ा बेटर हो सकती है, इसलिए 1 मार्क काटा। दूसरा यार बस ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ ना बाथ थोड़ा सा ऐसे रिटायरमेंट प्लेस जैसी वाइब देता है, छोटा सा है, कुछ ज्यादा बहुत ऐसे लग्जरीज वो नहीं है, स्काई स्क्रेपर्स एंड ऑल, तो थोड़े से ऑप्शंस कम है, बट ब्रिस्टल आपके बगल में ही है, लाइक 10 मिनट्स, तो बस उसके लिए 1 मार्क काट लिया। Okay, perfect, Yeah. perfect. That was a good rapid fire round. And I think we have come to an end of this whole conversation. So, thank you so much, Chirag, for giving us such deep insights about the whole study abroad journey and about your university as well. Do you want to give a final advice, or do you want to say something to the students जो maybe aspire कर रहे हैं study abroad करने के लिए? मैं बिल्कुल एक चीज बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल आप डरना मत कि बाहर कंट्री में पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा। इंडियंस अच्छे हैं बाहर, टेंशन मत लो, यहाँ के लोग और भी अच्छे हैं, तो वो तो बिल्कुल ही टेंशन मत लो। तो स्टेप आउट, यहाँ का आप कल्चर देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे, आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी कि अभी आपने अपने कंट्री में नहीं देखी हैं। तो डेफिनेटली कम हियर, स्टडी एंड प्रोबेबली अपने वर्ल्ड वाइड प्रोस्पेक्ट्स खोल लो इस बहाने। Perfect. Okay, that's on that note, I guess let's end this whole conversation. It was good talking to you, Chirag, and yes, you have a good life ahead. All the very best. Same to you. Thank you so much. So this was everything about Chirag's journey of studying abroad and about the University of Bath. I hope you enjoyed our conversation. Tell us in the comment section कि आप और क्या जानना चाहते हैं about the University of Bath or about studying in the UK. This is me, Swapnil, signing off. मिलते हैं next video में आपसे, and do not forget to like this video and subscribe to our channel as well. See you in the next video. Bye.